یہ کہانی اس کے تمام کردار مکمل طور پر فرضی ہیں۔ کسی بھی حقیقی شخص، مقام یا واقعے سے ان کی مشابہت محض ایک اتفاق ہوگی۔ مصنفہ کی نیت کسی کی دل آزاری یا توہین نہیں ہے، یہ صرف میری سوچوں کا عکس ہے، میرے خوابوں کی تصویر ہے۔ اگر کسی سے کوئی بھی مشابہت ہو جائے تو یہ محض ایک اتفاق ہوگا۔ السلام علیکم کیوٹیز، کیسی ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ تو چلیں جی، ناول شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستی اور مسکراتی رہیں، اور دعاؤں میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ میری باتوں سے بور ہو جائیں تو آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچے، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ آتش عشق، دا اسٹوری آف رومانس، تھرلز اینڈ موشنز۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے ہر موڑ پر ایک نیا راز کھلے گا۔ تو چلیں جی، آج کی ایپیسوڈ نمبر 27 سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ بی بی جی باہر جی، وہ مہک چودھری آئی ہیں، وہ ابھی ملازم اندر آتے کچھ اور بولتا کہ کچھ پیچھے سے مہک چودھری نے آتے ہوئے سلام کر گئی، السلام علیکم، لیکن سامنے سے جواب کی جگہ غصے سے گھورتی ہوئی دو آنکھیں۔ مجھے تایا جی سے ملنا ہے، دو ٹوک کہا گیا تھا، لیکن لہجہ انتہائی سرد۔ کیوں؟ آگے سے بھی سوال کیا گیا تھا۔ وجہ بھی انہیں ہی بتاؤں گی جو بابا کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ابیا کا ہاتھ مانگنے گئے تھے۔ وہ گھر پر نہیں ہیں، آگے سے بھی اسی سرد انداز میں جواب میں کہا گیا تھا۔ شارف بھائی، شارف بزدل، کہاں چھپ کر بیٹھے ہو دونوں باپ بیٹے؟ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ آواز آہستہ، لڑکی کہاں نا وہ گھر پر نہیں ہے، رضیہ سلطانہ نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ شارف تم باہر آ رہے ہو یا؟ وہ اور زور سے چلاتے ہوئے دھمکی بھرے لہجے میں بولی۔ گارڈز، رضیہ چودھری نے چلاتے ہوئے اپنے گارڈز کو پکارا۔ تو وردی میں ملبوس 3-4 گارڈز ان کے سامنے آتے مؤدبانہ انداز میں نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں مر گئے تھے تم سب کے سب؟ اٹھاؤ اس لڑکی کو اور اٹھا کر باہر پھینکو۔ رضیہ چودھری کا حکم سنتے گارڈز نظریں جھکائے گھبرائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے کیا کہا ہے، سنا نہیں تم لوگوں نے؟ ان سب کو اسی طرح نظریں جھکائے دیکھ کے رضیہ چودھری کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھا تو وہ دھاڑتے ہوئے بولی، سوری میڈم جی، ہم سے یہ گستاخی نہیں ہو سکتی، ہمیں اپنے ہاتھوں کا کیما نہیں بنوانا۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے معافی مانگتے ہوئے کہا تو رضیہ چودھری نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میڈم جی کی پہنچ اوپر تک ہے، ہم صبح منسٹر صاحب کے بیٹے کی حالت دیکھ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اب دوسرا بولا تھا تو اس کی بات سنتے مہک چودھری نے بھی اب نظریں اٹھا کر اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ بی بی جی پلیز رحم کریں ہم پر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب ان میں سے تیسرے نے منتیں کرتے ہوئے کہا، تم لوگ تنخواہیں مجھ سے لیتے ہو اور مجھ سے ہی غداری، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا، رضیہ چودھری نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو اس کا سانس پھولنے لگا، وہ تیز تیز سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، پھر وہ کھانستے ہوئے جلدی سے اپنے بیگ کی طرف بڑھتے اس میں سے انہیلر نکال کر اسے اپنے منہ کے ساتھ لگا کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ ارے ریلیکس تائی جی، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور آپ؟ مہک چودھری ان کے پاس آتے ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی تو لہجہ مذاق اڑاتا اور عزم سے بھرپور، اور چہرے پر وہی دبنگ مسکراہٹ جو ازل سے اس کے چہرے کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ اپنے ازلی انداز میں لوٹ چکی تھی، اب اسے رونا نہیں تھا، اسے رلانا تھا۔ بہت رو لیا تھا ان 3 مہینوں میں، وہ جان چکی تھی کہ اب آپ جتنا دبو گے یہ زمانہ آپ کو اتنا ہی دبائے گا، آپ جتنا جھکو گے یہ لوگ آپ کو اتنا ہی جھکائیں گے۔ لوگوں کو خاموش کروانے اور ہر ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے لڑنا ہوگا۔ دنیا والے آپ کو گرا دیں تو بیٹھ کر رونے کی بجائے اٹھو ایک نئے عزم کے ساتھ، تاکہ جنہوں نے آپ کو گرانے کی کوشش کی ہے انہیں کسی گہری کھائی میں گراؤ، اور ان لوگوں کو ایسے نہیں گرانا، انہیں اتنی اونچائی سے گرانا ہے کہ نیچے جاتے ہوئے وہ دکھائی نہ دیں، اتنی گہری کھائی ہونی چاہیے۔ ہن باپو جی آلہ زمانہ نہیں رہا، وہ زمانہ ٹر گیا جدوں وچ کہندے ہوندے سن کہ بچیو جے کوئی تہاڈے ایک گل تے چپیڑ مار دے تے دوسرا گل آگے کر دو تاکہ انہوں شرم آ جاوے۔ جے اگر تسی اپنا چہرہ جھکا کے اپنی گل اودے اگے کر دو گے تے انہوں شرم آ جاوے گی تے وہ پھر پیچھے ہٹ جائے گا، تون چھاڑ دے گا۔ بابا جی پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ بچے اگر کوئی تجھے ایک تھپڑ مار دے تو دوسرا گال آگے کر دو تاکہ وہ شرم کھا جائے اور تمہارے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اب زمانہ بدل گیا تائی جی، میرا زمانہ مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے۔ وہ رضیہ چودھری کی طرف تنزیہ ہنستے ہوئے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ رضیہ چودھری سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ جیسا منہ ویسی چپیٹ، وہ ان کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی۔
तो रज़िया चौधरी के गले में गिल्टी उभर के मादूम हुई। वो थूक निकलते हुए अपने खुश्क गले को तर करने की कोशिश करने लगी। माथे पर पसीने के कतरे तेज़ी से फैलने लगे। पल में रज़िया चौधरी का चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ने लगा। मैंने 2 कदम पीछे के लिए हालात को समझने के लिए सब ने मुझे कमज़ोर ही समझ लिया। अरे अरे, अभी से पसीना नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मैं अपने फार्म में भी नहीं आई और आप अभी से पसीने पसीने हो रही हैं। अभी तो इस कहानी का जो आप शुरू कर चुकी हैं, मुझे क्लाइमेक्स दिखाना है आपको। अभी से नहीं। अपने शौहर और बेटे को कह दें कि अब तक अगर महक चौधरी खामोश थी तो सिर्फ अपनी बीहू की खातिर, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूँगी, चाहे वो जिस भी पाताल में छुपा हो, और घसीटते हुए उसे लाकर बीहू के कदमों में फेंकूंगी, क्योंकि सवाल अब मेरी बीहू की ज़िंदगी का है। एक दफ़ा बस वो ठीक हो जाए, फिर जो सज़ा मैं आपको दूंगी मुझे यकीन है कि वो आपको कभी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन अगली 60 नस्लों तक आप किसी भी बेटी के साथ ऐसा करने का सोचते हुए भी कांप उठेंगी। और हाँ, अगर मेरी बीहू या फिर मेरे घर वालों में से किसी भी फ़र्द को खरोच भी आई तो आप जेल जाने की तैयारी पक्की रखिएगा। उम्मीद है समझ गई होंगी। और हाँ, अपने होते सोतों को भी समझा दीजिएगा। वो कहा लगाते उनके गाल को थपथपाते हुए इतना कहते वहाँ से निकलती चली गई। रज़िया चौधरी एक सांस अंदर खींचते हुए सोफे पर गिरी थी। कहाँ मर गए थे सबके सब। रज़िया चौधरी पिछले 10 मिनट से अपने चेहरे का पसीना साफ करते काल मिला रही थी कि फ़ोन पर चिल्ला उठी, सॉरी मैडम जी, आपने पिछले 2 माह से कॉल नहीं की थी तो मुझे अंदाज़ा। अगर पिछले 2 माह से कॉल नहीं की थी तो तुम्हें क्या लगा था अब भी नहीं करूँगी? वो धाड़ते हुए बोली। कैसे हैं वो दोनों? वो अब लहजे को आरामदेह बनाते हुए बोली। दोनों ठीक हैं जी, लेकिन खाना खाने में बहुत अड़ी करते हैं। तुम लोगों ने इन पर हाथ उठाया तो मैं तुम लोगों को जान से तो मारूंगी ही, और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मरवा दूंगी, जानते हो ना। वो सर्द लहजे में फुंकारते हुए उन्हें डराने की कोशिश करने लगी। बेफिक्र रहें मैडम जी, उन्हें मारने की नौबत ही नहीं आएगी। वो अपने रोमियो और जैक है ना। और ये आवाज़ दूसरी तरफ फ़ोन पर कोई सुन रहा था। इन फिज़ाओं में कहकहों की आवाज़ें गूंजते माहौल को और भी दहशतनाक बना रही थी। मैडम, वो दोनों एक ही सवाल करके आधे से ज़्यादा तो हमारा दिमाग खा चुके हैं। क्या पूछते हैं? रज़िया चौधरी ने सवाल करते हुए टिश्यू का एक और बॉक्स सामने करते उसमें से टिश्यू पेपर निकालते माथे को साफ किया था, जिस पर से खौफ का पसीना अभी तक बह रहा था। वो औरत जो अपने शौहर और बेटे को अगवा करवा कर दुनिया में कमीनगी का रिकॉर्ड बना चुकी थी, जो आलियान चौधरी जैसे बिजनेस टाइकॉन को हरा चुकी थी, वो आज एक नाजुक सी लड़की से डर गई थी। वो रज़िया चौधरी जो बड़े बड़े जुर्म कर खुदा से नहीं डरी थी, आलियान चौधरी और आर्यन खानजादा की ज़िंदगी तबाह करते उनसे नहीं डरी थी, वो आज इस नाजुक सी छोटी सी लड़की से डर गई थी। और मारे डर के माथे का पसीना खुश्क ही नहीं हो रहा था, गले की रगें बार बार खुश्क हो रही थी। वो अब दोबारा से इन्हेलर मुंह के साथ लगा गई थी। इसे बार बार सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। सुबह की ठंडी हवा यूनिवर्सिटी के लॉन में दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। तलबा की भीड़ अपने अपने लेक्चर्स हॉल की तरफ जा रही थी। महक ने सफ़ेद कोट पहना और स्टेथोस्कोप उसके कंधे पर झूल रहा था। वो अपने अंदाज में सबसे अलग दिख रही थी। आंखों में वही अलग सी इंतकाम की चमक छपी हुई थी। वो अब क्लासरूम में बैठी हुई थी। प्रोफेसर साहब ने ह्यूमन एनाटॉमी द हार्ट स्लाइड खोली और बच्चों की तरफ मुतवज्जो हुए। टेल मी क्लास, प्रोफेसर ने कहा, दिल का सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा है जहां स्लाइटेस्ट इंजरी भी जानलेवा हो सकती है? सर ने बच्चों की तरफ निगाह करते हुए सवाल किया। एक लड़की ने अपना हाथ उठाया तो सर ने उसे उठने का इशारा किया। सर, लेफ्ट वर्टिकल, उस लड़की ने खड़े होते हुए जवाब दिया था। प्रोफेसर ने सर हिलाया और कहा, गुड। याद रखें, इंसान का दिल इतना मजबूत है कि मुसलसल धड़कता रहता है, लेकिन कभी कभी एक झटका उसे रोक भी देता है। महक की नज़रें बज़ाहिर तो बोर्ड पर थी, लेकिन दिल अबीहा के सदमे पर ही अटका हुआ था। वो दिल में सोचते हुए, वो झटका जो मेरी बहन को अस्पताल पहुंचा गया था, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शारिफ चौधरी है। प्रोफेसर ने अब अगला सवाल किया था। टेल मी, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बिटवीन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड फिजिकल हेल्थ? एक लड़के ने अपना हाथ खड़ा किया तो सर ने उसे खड़ा होने का इशारा किया। सर, ट्रॉमा कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, इवन हार्ट फेलियर। महक के लब खुद बहुत हिले थे, और कभी ये इंसान की पूरी ज़िंदगी को भी बदल देता है। एग्जैक्टली मिस महक, प्रोफेसर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। दैट्स द राइट पॉइंट। क्लास ने भी महक की तरफ अब मुड़कर देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सकूत था, एक अजब सी वहशत थी जो उसकी हेज़ल ग्रीन आंखों से टपक रही थी, लेकिन अंदर का कर्ब कोई भी नहीं जान सकता था। वो अपने चेहरे पर एक ऐसा सर्द महरी का खोल चढ़ाए हुए बैठी हुई थी कि कोई भी उसके अंदर झांक कर भी देखना चाहता तो भी न जान सका। प्रोफेसर ने अब बोर्ड पर चंद और अल्फाज लिखे। ट्रॉमा एंड पेशेंट केयर।
क्लास रिमेंबर, हर डॉक्टर को ये समझना ज़रूरी है कि ज़ख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते, कई बार ज़ख्म दिल और दिमाग में ऐसे उतर जाते हैं कि मरीज़ जीते जी मर जाता है। एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया तो सर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्या सर ऐसे मरीज़ का इलाज मुमकिन है? उस लड़के ने खड़े होते हुए पूछा। प्रोफेसर ने संजीदगी से कहा, मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि इसके पास उम्मीद का सहारा हो। महक की आंखें एक लम्हे को बंद हो गईं। अबीहा के पास से उम्मीद छीन ली गई थी और वही उम्मीद उसे ही वापस लाना था महक को, और शारिब को उसके अंजाम तक पहुंचाना था। इस वक्त 11 बज रहे थे और इस वक्त लैब में कार्डवर पर प्रैक्टिस चल रही थी। प्रोफेसर ने कहा, ये फोकस क्लास, ये दिल है और सबसे नाजुक और सबसे मजबूत अज़ू है। एक पल में ये ज़िंदगी देता है और अगले ही पल रुक जाए तो सब ख़त्म। महक ने दिल के मॉडल पर नज़रें जमाते हुए कहा, बिल्कुल, और कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख देते हैं। उसके अल्फाज, उसके लहजे में जो कर्ब और दर्द था उसे शायद कोई ना जान सका। वो जब अपनी क्लासेस ले रही थी तो ध्यान सिर्फ 2 ही वजूदों की तरफ मरकूज़ था, लेकिन उसे इन दोनों से कोई दिली लगाव महसूस नहीं हो रहा था। दिल में गुस्से और नफ़रत के भांबड़ चल रहे थे तो आंखों में गुस्सा और दहशत, जो अब उसे उनके ज़हनों में बिठानी थी। इसकी हैज़ल ग्रीन आंखें दहशत और नफ़रत से लाल अंगारा होती और भी क़यामत हेज़ लग रही थी। वो इन दहशत ज़दा नज़रों से किसी को बेसब्री से ढूंढ रही थी। वो लाइब्रेरी से निकली तो उसका रुख उस तरफ था जिस तरफ फाइनल ईयर की क्लासेस हो रही थी। फाइनल ईयर लेक्चर थिएटर। महक चौधरी तेज़ कदमों से चलती उस तरफ जा रही थी। वहाँ से गुजरते हर फर्द की वो निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। उसके सुनहरी बाल ऊंची पोनी टेल में भी कमर से नीचे तक आते थे। इन पर सूरज की रोशनी पड़ती तो वो चमकते हुए सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगते, और वो ऊंची हील की टिक टिक के साथ बेनियासी बनी चलती जा रही थी। अंदर हाल में बोर्ड पर एक टॉपिक लिखा हुआ था, कार्डियोलॉजी, माइक्रोडायल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। प्रोफेसर ने कहा, ताहियांग खानज़ादा प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन। पूरा हाल ताहियांग खानज़ादा को देख रहा था। वो कॉन्फिडेंट अंदाज में आगे बढ़ा और स्लाइड पर दिल का डायग्राम बनाने लगा। ताहियांग खानज़ादा ने पुरअतमाद लहजे में बोलना शुरू किया, हार्ट अटैक इज़ नॉट अ सडन, इट बिल्ड अप साइलेंटली लाइक स्मॉल बैटराइल्स कलेक्टिंग ओवर टाइम until one day the system collapses। के दरवाज़ा एक धाड़ से खुला। सबकी नज़रें चौंक कर पीछे को मुड़ी। महक सफ़ेद कोट में नज़रें बिजली की तरह ताहियांग खानज़ादा पर जमाए हुए अंदर दाखिल हुई, और महक की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वादा टूटने का सदमा जिससे एक इंसान का दिल हमेशा के लिए मर जाता है। ताहियांग खानज़ादा लम्हे भर के लिए रुका था। महक की नज़रें उस पर जम गई थी। सब स्टूडेंट्स हैरान होकर कि ये लड़की कौन है और ये सीनियर से इस लहजे में बात करने की जुर्रत कैसे कर रही है। महक ने कुर्सी खींची और आगे आकर बैठ गई। अब क्लास सिर्फ तुम्हारी नहीं है ताहियांग खानज़ादा, मेरा भी कुछ हिसाब अभी बाकी है। ताहियांग खानज़ादा के साथ साथ वहाँ खड़े प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स ने भी चंद लम्हे के लिए उस लड़की की तरफ देखा था, लेकिन उसको पुरज़्म ऐसे बैठे देखकर क्लास दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी। प्रोफेसर ने बोर्ड पर दोबारा से लिखा था, माइक्रोडायल इन्फेक्शन केसेस प्रिवेंशन, और ताहियांग खानज़ादा पूरे एतमाद के साथ क्लास में खड़ा बोल रहा था, हार्ट अटैक कभी भी अचानक से नहीं होता, ये सालों की बैक्टीरियल एंड डैमेज का नतीजा होता है। जब भी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं तो एक पल का डिले भी मरीज़ की जान ले सकता है। उसकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज महक चौधरी को फिर से यादों की भंवर में लेकर जा चुके थे। वो अपने असली अंदाज में वापस आते पूरे एतमाद खड़ी होती, उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोली, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के किसी एक का धोखा किसी की ज़िंदगी के हर आर्टिकल्स ब्लॉक कर देता है और उसको मौत के दहाने तक ले जाता है। अब पूरे हाल में सरगोशियाँ शुरू हो चुकी थी। एक तालिब इल्म ने कहा, ये ताहियांग सर को जवाब दे रही है। दूसरा बोला, मुझे तो पागल लगती है, लेकिन तुमने इसकी हिम्मत देखी है। तीसरे ने कहा, तुम लोगों को कल का वाक़या क्या भूल गया है। ताहियांग खानज़ादा ने अपने माइंड को कूल रखते हुए मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा, मिस चौधरी, मैं जज्बात की बात नहीं कर रहा, यहाँ मेडिसिन की बात हो रही है, लॉजिक की बात हो रही है। अगर आप लेक्चर अटेंड करना चाहती हैं तो प्लीज़ बैठ जाएं, वरना आप बाहर जा सकती हैं। वो अनजान बना था, वो रेज़ा हुई थी। महक सीधी इसके करीब आकर खड़ी हो गई। तुम लोग दिलों की धड़कनों को समझाते हो, लेकिन दिल तोड़ने की लॉजिक का इलाज किस किताब में लिखा है? मुझे ज़रा ये समझाना पसंद करोगे? तुम मरीज़ को बचाते हो, लेकिन अपने करीबी लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हो। क्या यही है तुम्हारा मेडिसिन ताहियांग खानज़ादा?
کسی کی ہمت نہ ہوئی بولنے کی۔ سب کی نظریں اب ایک طرف تاہیانگ خانزادہ پر تو دوسری طرف مہک چودھری پر تھی۔ تاہیانگ خانزادہ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر کام انداز میں بولا، تمہارے الفاظ شاید کسی پرسنل ہسٹری سے بھرے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ڈاکٹر وہی ہے جو زخم دیکھے اور بھی بھر بھی دے، نہ کہ پرانے زخموں کو کریدتا پھرے۔ وہ ایک بار پھر سے انجان بنا تھا، دل کے ایک بار پھر سے ٹکڑے ہوئے تھے، وہ ایک دفعہ پھر سے ریزہ ہوئی تھی، لیکن یہ سب اسے لگا تھا۔ مہک نے سرد لہجے میں کہا، زخم بھر جاتے ہیں مگر دھوکے نہیں، اور میں وہ دھوکہ بھولنے والی نہیں آئی، یاد دلانے آئی ہوں۔ اب ہر بار جب تم ہاتھ پڑھاؤ گے تو تمہیں اپنی بے وفائی ضرور یاد آئے گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، وہاں سے پلٹ گئی اور کلاس سے باہر نکل گئی، اور پھر ایک دم پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ تاہیانگ خانزادہ کے چہرے پر پہلی بار ایک انجانی سی بے چینی دکھی تھی۔ اس کی زبان سے اپنا نام اسے بہت اچھا لگا تھا، لیکن ان ہیزل گرین آنکھوں میں وہ سرد پن اور نفرت غصہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو کسی اور ہی طرح منانے کا سوچ کر سکون سے بیٹھا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اس سے انجان بن کر ایک کیوٹ بوائے کی طرح ملتے اسے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا، اور پھر آخر میں جب مہک چودھری سر سے پاؤں تک اس کی محبت میں ڈوب جائے گی تو وہ اسے سرپرائز دیتے اپنی پناہوں میں قید کر لے گا۔ لیکن یہاں تو الٹا، وہ اسے سرپرائز کر کے تن فن کرتی جا چکی تھی۔ وہ اسے جاتے ہوئے بس دیکھتا رہ گیا۔ اس کی مسز ہان سچ میں پٹاخہ نہیں، پورے کا پورا ایٹم بم تھی، اور وہ اسے ایٹم بم کہہ رہا تھا۔ اگر وہ یہ سن لیتی، وہ اب اپنی ہنسی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ہنسی روکنے کے لیے وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنے لگا تھا۔ وہ اسے بغیر چادر اس طرح یوں تن فن کرتے اندر داخل ہوتے دیکھ غصے سے لال انگارا ہوتا اسے گھور کر رہ گیا تھا، لیکن اس کا یوں دندناتے ہوئے آنا اور اسی طرح سب کے سامنے کانفیڈنٹ انداز میں اسے مخاطب کرنا، اور وہ بھی اس کا نام لیتے ہوئے، کیا وہ اسے پہلے سے جانتی تھی؟ اس نے کب دیکھا تھا اسے تو لگتا تھا کہ اس نے بہت احتیاط سے کام لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے والی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں سے اپنا نام سنتے غصہ تو کہیں دور ہی جا سویا تھا۔ وہ اپنا لیکچر ادھورا چھوڑتے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سوال کئی تھے جن کے جواب وہ جاننا چاہتا تھا، اور وہ سارے جواب صرف ایک ہی ہستی تو اسے دے سکتی تھی، وہی جو اسے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ وہ باہر نکلا تو اسے سامنے لائبریری کی طرف بڑھتے دیکھ اس کے پیچھے بھاگا۔ مسز ہانم، مائی سویٹ، مائی سویٹی، وہ اسے لہجے میں شرارت اور محبت لیے مختلف ناموں سے پکارتے ہوئے اس کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھنے لگا، لیکن وہ اپنی اصلی انداز کے ساتھ پورے کانفیڈنٹ سے چلتی آگے بڑھ رہی تھی، جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہو۔ ایکسکیوز می مسز مہک، تاہیانگ خانزادہ اپنے نام کا حوالہ دیتے اسے پکارتے وہ اس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر چکا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کو رونتے ہوئے یوں ہی چلی جا رہی تھی۔ مسز ہان، مسز تاہیانگ خانزادہ، اب ان الفاظ نے اسے آگ ہی تو لگا دی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لڑکے لڑکیاں انہیں رشک سے دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے، تو کہیں کوئی جلن اور حسد سے جل بن رہا تھا۔ پہلے تو وہ لاڈ اور شرارتی انداز سے اسے تنگ کرتے ہوئے بلاتا رہا کہ شاید اس کی مسز شرما جائے، لیکن نہیں، وہ اگر شرما جائے تو اسے مہک چودھری کہا جائے۔ وہ ایک ہی جس میں اس تک پہنچتے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی، دونوں کے چہرے ایک دم سے لال ہوئے، ان کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔ اس کے تاہیانگ خانزادہ کے کندھوں پر ہاتھ تھے، اور آنکھیں جو لال انگارا ہو رہی تھی تاہیانگ خانزادہ کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ ہیزل گرین آنکھوں کا کالی سیاہ آنکھوں سے ٹکراؤ ہوا تھا، اور یہ ٹکراؤ بہت شدت پسند تھا، کسی کی آنکھوں میں محبت کا جنون اور کسی کی آنکھوں میں نفرت کا۔ دونوں ایک دم سٹیل کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک کی آنکھوں میں محبت، جنون، دیوانگی، والہانہ محبت اور آتشیش کیا کچھ نہیں تھا، اور دوسرے کی آنکھوں میں غصہ، شکوے، درد، غصے، بے وفائی کا درد، اپنوں کی بے بسی کا شکوے، وعدہ توڑنے کے۔ ہیزل گرین آنکھوں کی سرخی میں اب نمی بھی شامل ہوتے تاہیانگ خانزادہ کو تڑپا ہی تو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو اس کے گال پر گرا تو بے اختیار ہوتے وہ اپنے ہاتھوں کے پوروں سے اس کے گالوں کو صاف کرنے لگا، تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے اس کا ہاتھ بڑی بےرحمی سے جھٹک گئی، اور اپنے سفید روئی جیسے گالوں سے بے دردی کے ساتھ رگڑ کر آنسو صاف کرتے انہیں لال کر گئی۔ یہ منظر تاہیانگ خانزادہ صاحب کو جلتے انگاروں پر جلانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں لال انگارہ ہوتی مہک چودھری کی آنکھوں میں گڑی، لیکن اگلے لمحے جھک گئی۔ اب ہیزل گرین آنکھوں میں سوائے خالی پن اور سرد مہری کے کچھ بھی نہ تھا۔ مسز ہان، وہ درد کی انتہا پر بولا تھا، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ وہ تڑک کر بولتی اسے جلا کر راکھ ہی تو کر گئی تھی۔ آنکھ سے آنسو بھی باہر آنے کو بےتاب ہوئے تھے، لیکن وہ ضبط کر گئی تھی۔ مارے ضبط کے اس کے چہرے کی سرخیاں بڑھنے لگی تھی۔
मिसिज़ हान प्लीज़, वह बोला तो लहजे में इल्तिजा और बेबसी वाज़िया हो रही थी। मैंने पूछा मिस्टर ताहियांग खानज़ादा कि क्या मैं आपको जानती हूँ? उसने अब की बार उसके और नज़दीक होते इस खानज़ादे की आंखों में आंखें गाड़ते दांत पीसते हुए पूछा था। आसपास से गुजरते लड़के और लड़कियां उन्हें देखते रुक रुक कर एक दूसरे के साथ सरगोशियां करने लगे थे। लड़कियां महक चौधरी को गुस्से से घूर कर देख रही थी। वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने साथ लगाए खड़ा था। वो खुद को उससे आज़ाद कराने की कोशिश करते हलकान हो रही थी। दोनों इर्द गिर्द से बेगाने एक दूसरे में गुम थे। मिसिस हान प्लीज़, क्यों अजनबियों वाला बर्ताव कर रही हैं? एक बार मेरी बात। मिस्टर खानज़ादा साहिब, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? छोड़े मुझे, ये यूनिवर्सिटी है, आपका हैरात में दिया हुआ घर नहीं। वो उसके बाजुओं में मचलते हुए फुंकारी थी। इसका खुद को अजनबी कहना ताहियांग खानज़ादा को आग ही तो लगा गया था और उसके बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। वो इन होंठों को अपने दांतों से काटते हुए उसे अच्छी खासी सज़ा दे रहा था। बिना जगह की परवाह किए वो उसकी सांसें खींचने लगा था। उसकी कमर में डाला हाथ और ज़बरदस्ती से उसकी कमर को दबोच रहा था। इसे इस जालिम खानज़ादे की उंगलियां अपनी कमर में धंसती ही महसूस हो रही थी। वो उसके इस पागलपन पर लरज़ कर रह गई थी। वो उसके कंधों पर मुक्के मारते उसे जगह का एहसास दिलाने की कोशिश में नाकाम होते अपनी पूरी ताकत लगाते उसके होंठों को दांतों का निशाना बना गई थी। उसे जब अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ तो वो उससे आज़ाद कर गया। पिंक होंठों से सुर्खियाँ छलक रही थी। वो उसके दिए गए दर्द से बेहाल होती उसी जालिम के सीने में चेहरा छुपाए अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करने लगी। तो वो उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत करते सुकून से आंखें मूंदे खड़ा रहा। वो उसके सीने पर अपनी पूरी शिद्दत से दांत काट गई तो वो हल्की सी करार निकालते हुए गहरा मुस्कुरा उठा था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पास से गुजरते सरबुहान ने बुलंद आवाज़ में कहा, कहते इन्हें हकीकत की दुनिया में ला पठा। तो वो दोनों अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगे। उनके आसपास स्टूडेंट्स का जम्मे गफीर जमा हो चुका था। कुछ आउटिंग कर रहे थे तो कुछ के मुंह हैरत से खुले थे। कुछ के चेहरों पर सवाल तो कुछ के चेहरे मारे जलन और हसद के लाल अंगारा हो रहे थे। वो उसके बाजुओं से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए अब हलकान हो रही थी। वो उसके गिर्द अपना हिसार इतना मजबूत कर गया कि वो हिल भी न सकी। वो उसे हल्की सी ढील भी नहीं दे रहा था कि मुबादा वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते उसका चेहरा थप्पड़ों से न सुझा दे। वो उसकी गिरफ्त में चलती हुई एक बार फिर से इसके दिल के मुकाम पर ज़ोर से दांत काटते स्किन खींचते उस पर अपनी हिफ़्फ़त, शर्मिंदगी और गुस्सा एक साथ उतार रही थी। इसे कच्चा चबा जाओ मिसिज़ हान, कम वक्त इसी का तो कसूर है। लेकिन ये मेरी एक बात याद रखना, जब मैं बदले लेने पे आया तो मुझसे शिकवा मत करना। वो उसके कान के करीब सरगोशी करते उसे आग ही तो लगा गया था। एक बार मुझे इस कैद से आज़ाद तो होने दें, फिर बताती हूँ कि बदला कहते किसे हैं। वो भी दांत काटते हुए बोली तो लहजे में दर्द और गुस्से के साथ साथ शर्मिंदगी का असर भी शामिल था। मेरी कैद से आज़ाद होना तो भूल ही जाओ मिसिज़ हान, इसीलिए तो आज़ाद नहीं कर रहा क्योंकि मुझे थप्पड़ खाने का शौक़ नहीं है। इधर मैं तुम्हें अपनी पनाह से आज़ाद करूँ और उधर मेरी सेक्सी गालों पर कि जिन पर लड़कियां अपने होंठ रखने को तरसती हैं तुम्हारी उंगलियों के निशानात पड़े हों। क्या कहेंगे लोग कि द ग्रेट मिस्टर ताहियांग खानज़ादा को एक नाजुक हसीना। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता सर की आवाज़ आई, तुम दोनों की खुसर पुसर अपनी बंद करो, कुछ तो शर्म करो भी। इनकी सरगोशी में मुदाखिल करते सर फिर से बोले थे। मारे शर्म के इनका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था, लेकिन सामने खड़े लड़के को घंटा फ़र्क पड़ता था। सर अपनी बीवी को किस करने में कैसी शर्म, उसके अल्फाज थे या कोई धमाका जो पूरी यूनिट को हिला के रख गया था। कई चेहरों पर जल्जले के आसार वाज़ेह नजर आते, इनके चेहरे लट्ठे की तरह सफ़ेद कर गए थे। बकवास बंद करो मिस्टर खान, वो दांत कचकचाते हुए बोली और ज़ोर से झटकते हुए खुद को उससे आज़ाद कराने लगी। इस दफ़ा वो खुद को उसके हिसार से आज़ाद कराने में कामयाब हो ही गई थी। वो उसके गिर्द हिसार ढीला छोड़ चुका था। वो जान चुका था कि वो अपनी मिसिज़ हान को बहुत तपा चुका है और अब ये तपस किस पर निकलनी थी पता नहीं, खुदा खैर करे। वो इस वक्त मार्गला के एक गहरे जंगल के बीचों बीच खड़ा था। इसके हाथों में कुछ डिवाइसेस मौजूद थी जिन्हें टच करते वो अपनी अकाब जैसी आंखों से इर्द गिर्द भी जायज़ा ले रहा था। इसके साथ इसके दो साथी और चलते हुए अपने हाथों को जेबों में डाले इधर उधर देखते दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। दूर जंगल के बीचों बीच इन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी तो वो उसकी समझ बढ़ने लगे। झोंपड़ी बाहर से जितनी खराब लग रही थी अंदर उसके बरक्स था सब कुछ। झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखो तो सामने दो वजूद रस्सियों में जकड़े हुए तुम्हें नजर आएंगे। ज़रा गौर से देखोगे तो एक 20-22 साल का जवान और एक 65 साल मर्द जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनके बाजुओं को पीछे करते रस्सियों से बांध दिया गया है। वो दोनों इस वक्त वहाँ लगे लग्जेरियस बेड पर पीछे टेक लगाए पड़े हैं। दूर से देखकर उन्हें लगता है कि जैसे वो दोनों सुकून से सो रहे हैं, लेकिन अगर तुम उनके करीब जाओ और गौर करोगे तो वो दोनों तुम्हें अपने होशो गुफ्त से बेगाने पड़े मिलेंगे। वो खिड़की से इन दोनों को देखते हुए हैरान तो नहीं, लेकिन इस कमरे की आराइश और
इस छोटी सी झोंपड़ी की आराज देखते हैरान जरूर हुआ था। तुम एक औरत के नाम पर गाली से कुछ ज्यादा ही हो, वो मुंह में बड़बड़ाते हुए अब झोंपड़ी की दूसरी साइड बढ़ने लगा था। सामने दो लोग लोडेड गन्स पकड़े झोंपड़ी के दरमियान दरवाजे के सामने चाको चौपान इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे और बाकी के तकरीबन 10 से 15 लोग 3 टेबलों के गिर्द बैठे हाथों में ताश के पत्ते पकड़े खेल रहे थे। सामने टेबल पर कुछ गिलासत से भरी बोतलें भी पड़ी थी, जिनमें से वो एक एक करते मुंह से लगाते और झूमते हुए हाथ से एक पत्ता टेबल पर फेंकते तो उनमें से एक तेजी से लपक कर मैच करते उठाकर कहकहा लगाते तो बाकी मुंह में गालियां बकते नजर आते थे। वो पीछे की जानी मुड़ते हुए अपने साथियों को आंखों से इशारा करते हुए दरवाजे की जानी बढ़ा। उनमें से एक इन दोनों की तरफ बढ़ा जो झोंपड़ी के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे और वो उन्हें मौका दिए बिना उनकी तरफ बढ़ते उनमें से एक की गर्दन में हाथ डालते मोड़ गया तो कड़िक की आवाज़ के साथ वो ज़मीन बोस हुआ था और दूसरे की वो टांगों के बीचों बीच वार करते उसे तड़पता पहले वाले को नीचे गिराते दूसरे की तरफ बढ़ा जो अपनी टांगों को क्लोज करते हुए इन पर अपने हाथ रखते अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और अगले पल ही वो अपने दर्द को सहते हुए उठते हुए अपनी गन उसके सर पर तान गया था। इससे पहले कि वो फायर करता जिन ने फुर्ती से उसके हाथ से टांग पर वार करते उसके हाथ से गन छीनकर उसी की कनपट्टी पर रख दी थी। ये सब उसने इतनी तेज़ी से किया था कि सामने वाले को समझने का मौका ही न मिला। वो उसकी कनपट्टी पर गन ताने से इशारा कर गया तो वो अपने बाजू हैंड्स अप करते उसके आगे चलने लगा था। वो उसे झोंपड़ी के पीछे ले जाते हुए उसे उसकी मंजिल पर पहुंचाते अब अपने हाथ झाड़ते हुए वापस अपनी मुकाम पर पहुंचा। अब उसका रुख उन टेबलों की तरफ था। अरे वाह, यहाँ तो अपने मतलब की महफल सजी हुई है, क्या बात है। वो उनकी तरफ बढ़ते उनके कंधों पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए कहते उन्हें फ्लाइंग किस देने लगा। हाँ यार देख तो सही, चल आ जाए एक बाजी हो जाए। जिमिन ने भी उनमें से एक की गर्दन के महसूस हिस्से को दबाया तो वो एक तरफ गर्दन लटकाए ज़मीन बोस हुआ तो जिमिन कुर्सी पर बैठकर उनके आगे से ताश के पत्ते अपनी तरफ खींच गया और वो सब उन्हें होनकों की तरह देखने लगे। वो उससे आज़ादी मिलते पीछे हटते हुए उसे ज़ोर से धक्का दे गई और वो उसके इस रिएक्ट पर उसे घूरने लगा, लेकिन उसकी हालत देखते वो नज़रें हटा न सका। उसकी आंखों से बहते आंसू, गालों पर गुस्से की सुर्खी, होंठों के किनारे पर कट का निशान जिसमें से खून की बूंद निकलती उसके चेहरे नीचे जा रही थी। वो गुस्से से लाल अंगारा होती आंखें और वो हैज़ल ग्रीन आंखें जिनमें वो अपना अक्स देखने का तमन्नाई था, अब इनमें गुस्सा और नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बेबस होते उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा गया, लेकिन वो उसका हाथ झटकते उसे शिकवा की निगाहों से देखते वहाँ से भागती हुई निकलने लगी। ताहियांग खानज़ादा को लगा जैसे अभी वो उस तरह चली गई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। वो फिर से उसके पीछे भागा। अभी तुम दोनों अभी और इसी वक्त प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचो। पीछे से सर की धाड़ती हुई आवाज़ जिसे वो सुनकर भी अनसुना करते वहाँ से निकलता एक ही जस्त में उस तक पहुँचा था। अब वो उसकी कलाई पकड़ने पर टाइम ज़ाया करने की बजाय उसे एक ही हाथ से उठाते कंधे पर डालते लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा तो वो उसके कंधे पर मुक्कों से वार करते खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो उसे लेकर जब लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो वहाँ हर तरफ किताबों के रैक जिनमें हर मौजू की किताब रखी गई थी नज़र आए और दूसरी साइड चेयर्स लगी थी जिनके आगे टेबल रखे गए थे। मुझे छोड़ो बिगड़े हुए चिंपैंजी, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो उसे मुक्के मारते हुए चिल्लाते हुए बोली तो सामने किताबों में घुसे चेहरे अब उन दोनों की तरफ मतवज्जो हुए। साइलेंट। वहाँ मौजूद सर ने गुस्से से घूरते हुए उन्हें इशारा करते यहाँ से 9-2-11 हो जाने का इशारा किया, जिसे वो अजली ढीठ इग्नोर करते हुए अब उसे उसी तरह कंधे पर डाले अब उस तरफ बढ़ा था जिस तरफ कोई भी जीरू मौजूद नहीं था। रिलैक्स मिसिज हान, शोर मत करें वरना सर हम दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे। वो उसके होंठों पर उंगली रखते उसे वार करने लगा तो वो होंठों पर गफ लगा गई। ताहियांग खानज़ादा ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि उसकी बीवी ने उसे थप्पड़ नहीं मार दिया। वो उसे घूरकर देख रही थी तो ताहियांग खानज़ादा ने उसे आंख मिंग करते फ्लाइंग किस दी ही थी कि वो उसकी उंगली जो वो उसके नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठों पर रखे हुए था वहीं उंगली अपनी दांतों की चक्की में रखते ऐसे पीसने लगी जैसे कि ये उंगली ना हो गंदम के दाने हों और उसके दांत नहीं आटा पीसने वाली चक्की। वो दर्द से बिलबिला उठा था लेकिन उसने अपनी उंगली बाहर नहीं खींची थी। वो चाहता था कि उसकी मिसिज हान अपने अंदर की सारी फ्रस्ट्रेशन निकाले, फिर चाहे वो जिस तरह भी। जब उसे कुछ भी हरकत करते महसूस ना किया तो वो अपनी आंखें खोलते हुए उसे देखने लगी थी। उसके चेहरे पर दर्द के असरात से ज़्यादा कर्ब का एहसास देखते वो उसकी उंगली को आज़ाद कर गई, लेकिन आंखों में गुस्सा खनूस था। बस या अभी और गुस्सा है, अगर है तो वो भी निकाल लें, लेकिन प्लीज़ अब ये दूरी और बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी आंखों में देखते हुए बेबसी से बोला था, अगर मेरे पास इस वक्त बाबा जानी की पिस्टल होती तो मैं बिना एक लम्हे की देरी के आपको जान से मार डालती। आपकी इस चीप हरकत पर
जान लेने के लिए पिस्टल की क्या ज़रूरत है? आधी जान तो तुम्हारी बेरुखी ले ही चुकी है और बाकी की आधी तुम एक लम्हे में निकाल सकती हो। बस इन होंठों पर अपने होंठ रख दो। कसम मोहब्बत की जान, बाकी की आधी जान तुम्हारे वजूद में मुंतकिल कर दूंगा। वो वहाँ से निकलने लगी तो ताहियांग खानज़ादा उसकी दोनों साइडों पर हाथ रखते उसे महसूर कर गया और फिर वो नीचे झुकते हुए अपने होंठ उसके होंठों के करीब ले गया, इतने करीब कि वो बोलने के लिए अगर लब खोलती तो उसके लबों से जा टकराते। वो उसे पीछे धकेल कर अपना हाथ उठा गई और वो हाथ उसके चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है मिस्टर खानज़ादा कि क्या मैं इतनी कोई गिरी पड़ी लड़की हूँ कि जब जिसका जी चाहेगा जो चाहेगा कहता चला जाएगा और मैं चुपचाप देखती रहूँगी? दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ से खुला तो कमरे में मौजूद ऑटोमेटिक लाइट्स जल उठी। सामने इन्हें देख वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ते इनके हाथ पाँव खोलने लगा। इनके हाथों और पैरों की रस्सियाँ खुली तो उनके नीचे से खून रसने लगा था। कैसी माँ है ये औरत? क्या माएँ ऐसी भी होती हैं? माएँ तो वो होती हैं जो अपने बच्चों की हंसी के लिए अपना आप अपने बच्चों पर से वार देती हैं। एक औरत जो अपने ससुरालियों की गालियाँ और बेखुदा इल्ज़ामात सह जाती है, अपने शौहर की मार, उसकी तरफ से मिलने वाली रुसवाई बर्दाश्त कर जाती है, अपनी नंदों, अपनी देवरानी या जिठानी के लगाए गए इल्ज़ामात भी बर्दाश्त कर जाती है। भूख प्यास मार के ज़ख्मों के साथ साथ बातों और किरदार पर लगने वाले इल्ज़ामात जो उसकी रूह तक को मसक कर देते हैं। एक औरत ये सब इस वजह से बर्दाश्त नहीं करती कि वो कमज़ोर होती है, बल्कि वो ये सब इसलिए सह जाती है कि कल को कोई उसके बच्चों को कुछ बुरा भला ना कह दे, कोई इसके बच्चों पर इल्ज़ाम तराशियाँ ना करे। वो बच्चों को अपने मैके भी इसलिए ही नहीं लेकर जा सकती क्योंकि वो जानती है कि चाहे मैके वाले कितने ही अच्छे क्यों ना हों, वो उसके बच्चों को वो प्यार कभी नहीं दे सकते जो वो अपनी औलाद को या फिर एक बाप अपनी औलाद को दे सकता है। इसी तरह की बातें इसे मजबूत बनाए रखती हैं और वो हर तरह की ज़्यादतियों के बावजूद भी अपना मस्कन कभी नहीं छोड़ती। यहाँ पर उसकी ना सही पर उसके बच्चों की हंसी वो खुल कर देख सकती है। इनमें किसी किस्म का एहसास कमतरी ढूंढने से भी नहीं मिलता। बस यही एक बात उसे ये सब सहने का हौसला देती है। और ऐसी औरतें कभी कमज़ोर नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, जो अपना हर मामला अल्लाह पर छोड़ देती हैं और आखिरकार मेरा रब उसे उसका मकाम अता कर ही देता है। मैं सलाम पेश करती हूँ इन माँओं को जो अपने बच्चों की खातिर ये सब सहती हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगली एपिसोड में इंशाल्लाह। जी तो जनाब, कैसी लगी ये एपिसोड? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आतिशेष का सफ़र अच्छा लग रहा होगा और वो भी अपने ताहियांग खानज़ादा और अपनी महक के साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर कहीं कोई गड़बड़ या फिर कुछ कमी लगे तो मशवरा दें कमेंट सेक्शन में। अब एक दूसरे से खुदा हाफिज़ कहते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।